Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science रफ़ कॉपीज़. अपने रफ़ कॉपीज़ निकाल दें जिसमें आप लोगों ने जनरल साइंस का रिटर्न वर्क स्टार्ट किया है. हमने यूनिट नंबर 2 का रिटर्न वर्क स्टार्ट किया है. शॉर्ट क्वेश्चंस कल राइट किए थे. कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हाउ आर द जम्प्स कीप्ड आउट ऑफ टिन फूड ये वाला राइट किया था. और क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया था व्हाट इज़ पास्चराइजेशन. तो ये कल हमने दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस राइट किए थे. आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3+4 राइट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में हम राइट करेंगे. सो टेक आउट योर रफ कॉपीज़ and start writing. If you people are having space on that page, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे अगर जगह है तो आप लोग उसी पेज पे स्टार्ट कर ले. और अगर उस पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज रेडी कर ले. ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइन, डबल मार्जिन लाइन विद 1 फिंगर स्पेस विद अ रूलर and write on the top General Science CW 25th April 2020. Give heading of question number 3 in capital. We are going to start writing short question number 3. Question number 3. What are the main kinds of microorganisms? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन काइंड्स क्या है कि मेन जो किस्में हैं वो कौन सी हैं. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने यूनिट में पढ़ा. इस यूनिट में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी, very small organisms which can only be seen with the help of a powerful microscope. And we know that there are 4 kinds of microorganisms. अभी क्वेश्चन में है कि वो मेन काइंड्स कौन से हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. मेन काइंड्स इसके 4 मेन काइंड्स है फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस. What are the main kinds of microorganisms? Question marked or draw double underline the question, leave line, and in the next line give heading with blue marker of answer in capital. You will give heading and you will write the questions and you will give heading with the blue marker, and for answer you will use English pen. The main kinds, start writing the answer in the next line. The main kinds of microorganisms are, the main kinds of microorganisms are bacteria, number 1. और you will write one in one line, separate line में ये आप लोग राइट कर ली. नंबर 1 बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया. नंबर 2 फंजाई, FUNGI फंजाई. नंबर 3 प्रोटोजोआ, PROTOZOA प्रोटोजोआ. नंबर 4 viruses, VIRUSES viruses. So write the answer. The main kinds of microorganisms are, अलग अलग लाइन में 4 नेम्स लिख के. नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 viruses. After this draw half finishing line and write correct spellings. Do neat and tidy handwriting. नोटबुक में बहुत ज़्यादा नीट राइटिंग करें and there should be no spelling mistake in your notebook. Draw half finishing line and in the next line give heading of question number 4 and write the question with the blue marker. Name any 3 places where you can find bacteria. कोई सी 3 जगहों के नेम राइट कर ले जहाँ पे आप लोग बैक्टीरिया आप लोगों को बैक्टीरिया मिल सकते हैं. और बैक्टीरिया तो हम माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आते हैं. दिस अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and we know that microorganisms are found everywhere in the world, in the air, in the soil, on or in our body. तो आप लोग खुद से भी कोई भी 3 places के नेम राइट कर सकते हैं. So start writing the answer. Give heading of answer in the next line. Write neatly the question with the blue marker. Name any 3 places where you can find bacteria.
Give heading of answer. Bacteria can be found in the places. Bacteria can be found in the places exposed to the air. Exposed, exposed to the air, comma, in water, comma, in soil, comma, in और on our body. ये हमें एयर में भी अगर कोई चीज़ एयर में एक्सपोज हो तो ये बैक्टीरिया एयर में भी मौजूद है, पानी में भी है, सॉइल में भी है और हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. सो राइट द आंसर नीटली, राइट करेक्ट स्पेलिंग्स. बैक्टीरिया कैन बी फाउंड in the places exposed to the air. Exposed, exposed to the air, comma, in water, comma, in soil, comma, in or on our body. Full stop. Write the answer neatly and after this draw full finishing line. इसी के साथ हमारे short questions finish हो गए. इस यूनिट में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे और इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का रिटन वर्क फिनिश हो गया. प्रिपेयर द नेक्स्ट पेज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज रेडी कर ले. ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइन विद 1 फिंगर स्पेस विद द रूलर. राइट ऑन द टॉप टॉपिक इन कैपिटल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फिल द टॉप ऑफ द पेज. जनरल साइंस CW 25th April 2020. Topic long questions. Give heading of long questions in capital with the blue marker and double underline the long question, heading of long question and topic. Then leave line and give heading of question number 1 in capital. What is question 1? Write the question 1. In what ways are diseases spread from person to person? In what ways, WAYS ways, are diseases 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 spread from person to person? बीमारियां कैसे एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, लोगों में बीमारियां कैसे फैलती है, किन तरीक़ों से. So leave line and in the next line give heading of answer in capital. Underline the heading question number 1 and question and answer heading of answer underline करें इनको और फिर नेक्स्ट लाइन में आंसर स्टार्ट कर ले. आंसर इसका है कि डिजीज़ जो है ये एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरह लोगों में स्प्रेड होती है, फैलती हैं. हवा के ज़रिए, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो कोरोना वायरस की से जो बीमारी आई है, जो लंग्स इन्फेक्शन जो कोविड-19 है, तो ये किस तरह फैलती है कि स्नीजिंग या कफिंग से एयर में वो जम्स चले जाते हैं. इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीजिंग करे या वो छींके या कफिंग करे तो एयर में जम्स चले जाते हैं. अगर दूसरा बंदा उसके करीब हो और वो सांस ले तो उस सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए बॉडी में जम्स एंटर हो जाते हैं. इसी तरह तो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं. फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से भी क्यों कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस रख के, क्योंकि अगर हाथ हैंड शेक करने से या डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये बीमारी फैलती हैं. और बॉडीली फ्लूइड्स मीन ब्लड. अगर किसी एक बंदे को ब्लड की ज़रूरत है और कोई दूसरा उसको डोनेट कर ले और डोनेटर जो है उसकी ब्लड में जर्म्स है, वो इन्फेक्टेड है, तो वो जब जिस पर्सन को डोनेट कर रहा है तो उसकी बॉडी में अगर वो ब्लड चला गया तो उसमें जर्म्स चले जाते. इसी तरह बीमारियां फैलती रहती हैं. सो राइट द आंसर नीटली. डिजीज़ेस आर DISEASES diseases are passed from person to person. PERSON passed from person to person through spread from person to person through 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 the air or through direct contact CONTACT direct contact or
bodily fluids, BODILY, bodily fluids, FLUIDS, कॉमा सच एज ब्लड, जिस्मानी जो फ्लूइड है, तो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लूइड है। अगर एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड दूसरे को दे दे, डोनेट कर दे, तो उसकी बॉडी में जर्म्स ब्लड के थ्रू शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरह डिजीज़ स्प्रेड होती है लोगों में। डिजीज़ आर पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर or through direct contact or bodily fluids, comma such as blood, full stop, after this draw half finishing line। clear? आज हमने short question number 3, short question number 4 और long question number 1 राइट किया। हमने ये 3 क्वेश्चंस राइट कर ली, इसलिए आप लोग नीटली अपने नोटबुक्स में इसको राइट करें। राइट नीटली इन योर नोटबुक्स एंड डू नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग, केयरफुली हैंड राइटिंग करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग्स करेक्ट लिख के, और मार्जिन लाइन, फिनिशिंग लाइन, अंडरलाइनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्लियर?